بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ملتان میں پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کا میلہ سجنے میں چند روز باقی۔ شائقین کرکٹ سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کے لیے پرجوش۔ انگلینڈ ٹیم نے دوسرے روز بھی ریسٹ کیا جبکہ پاکستانی ٹیم نے بھرپور پریکٹس کی۔ ملتان میں پاک باقی رہ گئے۔ شائقین کرکٹ سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کے لیے پرجوش ہیں۔ انگلینڈ ٹیم نے دوسرے روز بھی ریسٹ کیا ہے جبکہ پاکستانی ٹیم نے بھرپور پریکٹس کی۔ پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز 2024 ملتان انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم بنے گا 2 ٹیسٹ میچز کا میزبان۔ قومی ٹیم نے دوسرے روز بھی ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں 3 گھنٹے کا پریکٹس سیشن کیا جس میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی گئیں۔ قومی ٹیم کے آل راؤنڈر سلمان علی آغا کا کہنا تھا کہ انگلینڈ ٹیم کے ٹف ہونے کا اندازہ ہے مگر کوشش ہے اچھی پرفارمنس دیں۔ 3 ٹیسٹ ان کے خلاف بھی لاسٹ ایئر کھیلے تھے ہم، اور مجھے آئیڈیا ہے کہ مطلب کتنی ٹف وہ ٹیم ہو سکتی ہے اور کتنی ٹف چیلنجنگ وہ کنڈیشنز ہمیں دیں گے، لیکن اس کے لیے ہم پریپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور کوشش کریں گے جو لاسٹ ایئر تھا اس سے بہتر رزلٹ ہو، اور یہ اپنے گولز ضرور ہیں لیکن ٹیم فرسٹ ہے۔ سلمان علی آغا نے ملتان کے گرم موسم بارے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم تو عادی ہیں مگر یہ موسم انگلینڈ ٹیم کو ضرور متاثر کرے گا۔ ہمارے لیے تو یہ پلس پوائنٹ ہی ہے کیونکہ ہم لوگ تو ابھی جو بنا سے سیریز کھیلے تھے پھر چیمپئنز کپ جو کھیلے ہیں اس میں زیادہ گرمی تھی، تو ابھی ہمارے لیے تو یہ پلس پوائنٹ ہے کیونکہ ہم لوگ یوز ٹو ہیں، وہ لوگ تھوڑا میرے خیال سے سردی سے آ رہے ہیں، تو ہم اس کو ایز اے پلس پوائنٹ لے رہے ہیں۔ جمعہ کے روز مہمان و میزبان دونوں ٹیمیں ملتان اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن کریں گی۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 7 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ اسٹیڈیم کے اندر اور ارد گرد فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی بارے بڑی خبر۔ 6 روزہ 20ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کا میلہ 4 سے 9 فروری تک بہاولپور میں سجایا جائے گا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر چنر نے کمشنر بہاولپور آفس میں ریلی بارے اجلاس کی صدارت کی۔ 6 روزہ 20ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کا میلہ 4 سے 9 فروری تک بہاولپور میں سجایا جائے گا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر نے کمشنر بہاولپور آفس میں ریلی بارے اجلاس کی صدارت کی۔ دنیا بھر کے سیاحوں اور مقامی شائقین کے لیے بڑی خبر، بہاولپور میں دل دہلا دینے والی انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی کا میلہ سجنے میں چند ماہ باقی۔ 20ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کا انعقاد 4 فروری سے 9 فروری تک ہوگا۔ کمشنر آفس بہاولپور میں چولستان ڈیزرٹ ریلی کے انتظامات بارے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر چنر نے کی۔ سابق سینیٹر و لیگی رہنما سعود مجید سمیت اعلیٰ افسران بھی اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس میں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کے لیے تمام محکموں کو بروقت انتظامات یقینی بنانے کے احکامات دیے گئے۔ شرکاء اجلاس کا اس بات پر اتفاق تھا کہ ریلی انٹرنیشنل ایونٹ ہے، اس کے ذریعے ہم پاکستان کا خوبصورت چہرہ دنیا کو دکھاتے ہیں، اس لیے اس کے انتظامات میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ مظفر گڑھ میں ذاتی گرمی پھر سے لوٹ ہے۔ گرم اور معتدل موسم کے باعث ڈینگی کے خطرات بڑھنے لگے۔ رواں سال اب تک 2 ڈینگی کے مریض رپورٹ۔ گنیشوا کینال کے اطراف میں رہنے والے شہریوں کو ڈینگی سے خطرہ۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ نہر میں کھڑا پانی ڈینگی کا سبب بن سکتا ہے۔ کئی بار محکمہ انہار کو درخواستیں دی مگر مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ مچھروں کی افزائش کا بڑھنا خطرے کی علامت ہے۔ مظفر گڑھ میں ذاتی گرمی پھر سے لوٹ آئی۔ گرم اور معتدل موسم کے باعث ڈینگی کے خطرات بھی بڑھنے لگے۔ شہر اولیا میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ سبزی منڈی میں سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ۔ منڈی میں ٹماٹر 750 اور پیاز 800 روپے فی دھڑی فروخت ہونے لگے۔ ملتان میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ سبزی منڈی میں سبز مسالہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ منڈی میں ٹماٹر 750 اور پیاز 800 روپے فی دھڑی فروخت ہونے لگے۔ ہول سیل سطح پر ٹماٹر 150 اور پیاز 160 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ مارکیٹ میں پیاز اور ٹماٹر 200 روپے فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ آڑتی کہتے ہیں کہ ٹماٹر کی فصل کم ہے، بلوچستان کا ٹماٹر آ رہا ہے۔ ٹماٹر آتے ہیں لوریلائی سے، بلوچستان سے، جناب میں جو ہے اس واسطے مہنگا پورے پاکستان میں مہنگا، کوئی ملتان میں مہنگا نہیں ہے۔ 150 روپے کلو، 140 روپے کلو، 200 روپے کلو تک بھی بک جاتے ہیں۔ اور جناب ہلکے والے جو ہوتے ہیں 60 روپے کلو والے بھی ہوتے ہیں ڈیمیج مال۔ آڑتی کا کہنا تھا کہ پیاز لوریلائی سے آ رہا ہے، 2 دن سے راستے بند تھے اس لیے کنٹینر نہیں پہنچ سکے۔ پیاز 700 روپے دھڑی ہے، یہ 800 دھڑی ہے۔ منڈی ہے تو کم آتے ہے تو تیز ہو جاتی ہے اور زیادہ آتے تو ریٹ کم ہوتا ہے، تو سستا کرنا چاہیے۔ ڈیزل کرو کم، بجلی کرو کم، کھاد سستی کرو
जब ही तो होएगा सस्ता। शहरियों ने कहा है कि अब सब्जियां भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इतनी दिहाड़ी नहीं जितने की सब्जियां लेनी पड़ जाती हैं। से फोल्ड करें, इतनी तनख्वाह नहीं है जितने से हम ले सके। प्याज और टमाटर इतने महंगे हैं। हाँ जी, कोई चीज भी नहीं हम ले सकते, बस ऐसे फिर के चले जाते हैं। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, मुल्तान में अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया। सरकारी निर्ख तो मजाक बनकर रह गए। दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट्स मुकर्रर कर लिए हैं। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च की कीमत में होशरुबा इजाफा। जिला इंतजामिया सरकारी निरखों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सरकारी निरखनामा में अदरक 610, लहसुन 540 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 800 और लहसुन 650 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 125, टमाटर 110 और हरी मिर्च 114 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में भिंडी 140, अरवी 200 और बंद गोभी 160 रुपए फी किलो दस्तयाब। शिमला मिर्च 270, करेले 180 और टिंडे 260 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में सुंदरखानी अंगूर 500, अनार 450 और सेब 300 रुपए फी किलो फरोख्त। पपीता 400 और आड़ू 350 रुपए फी किलो, जबकि केले 120 रुपए फी दर्जन दस्तयाब। मुसम्मी 100, शकरी 90 और छल्ली 60 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कामरान के साथ राना बलाल, रोही, मुल्तान। मियांवाली इंतजामिया मसनूई महंगाई को रोकने के लिए मुतहरिक होगी। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। चेकिंग के दौरान नाजायज मुनाफाखोरों को 22 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मियांवाली इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर मुराद हुसैन कुकारा कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने गुज़श्ता माह 10,000 से जायद इंस्पेक्शंस की हैं। इस दौरान नाजायज मुनाफाखोरों को 22 लाख रुपए के जुर्माने किए गए हैं। गिराव फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पिछले सितंबर के माह के अंदर हमने तकरीबन 22 लाख से ज़्यादा जुर्माना किया, 10,000 से ज़्यादा हमने उसकी इंस्पेक्शंस की हैं। और इसके अंदर सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी है कि सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिब और चीफ सेक्रेटरी साहिबा के मंशूर के मुताबिक जो मसनूई महंगाई उसको सबसे ज़्यादा फील्ड के इंस्पेक्शंस की जा रही हैं। मंडियों की सुबह मॉनिटरिंग की जा रही है और उसके जो हमारी एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस रेगुलेट किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा रिलीफ हम अपनी आवाम को दे सकें। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि इंतजामिया का नुमाइंदा बोली के वक्त मंडियों में मौजूद होता है। मंडी में निर्ख दुरुस्त होंगे तो महंगाई नहीं होगी। जिला भर में 30 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट निर्ख चेक कर रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी कोशिश होती है कि जो हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हैं, जो सुबह फ्रूट और वेजिटेबल मंडी के अंदर सुबह जो मॉनिटरिंग है ऑक्शंस की कि सुबह जो बोलियां करवाई जाती है, एक तो वो शफाफ तरीके से करवाई जाए ताकि आपके फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जी फल हैं, उनकी वहाँ पे प्राइसेस रियल निकलें। दूसरा ये जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से जो हमारी 18 एसेंशियल आइटम्स हैं जिसके अंदर दालें हैं, दूध है, जो दूसरे डिपार्टमेंट आइटम्स हैं, उनकी भी हकीकत की बिना पर लिस्ट इजरा किया जाता है और उसका बाकायदा तयन जो है हमारी अंजुमन ताजरान और जो लोकल हमारे जो यहाँ पे इंतजामिया होती है उनके साथ मिलकर उसका तयन करें। असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली का मजीद कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का मिशन है। मुल्तान में इंसदाद स्मोक रैली और सेमिनार का इनेकाद। कमिश्नर मरियम खान का कहना है कि माहौल को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर शजरकारी की जरूरत है। गवर्नमेंट कॉलेज हाई स्कूल कलमा चौक मुल्तान में इंसदाद स्मोक सेमिनार का इनेकाद किया गया। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान, डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सईमा शेख और असातिज़ा समेत तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। कमिश्नर मरियम खान का कहना था कि मौसमी तब्दीली को नजर रखते हुए एहतियाती तदाबीर अपनाना जरूरी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने के लिए बड़े पैमाने पर शजरकारी की जरूरत है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी और आप सबसे उम्मीद होगी कि इस सेमिनार से आप ये लेसन लेके उठें। आजकल दरख्त लगाने का, पौधे लगाने का सीजन है। बेशक आप एक छोटा पौधा लगा दें लेकिन उसकी फिर निगहदाश्त करें, उसकी परवरिश करें कि वो एक अपनी रूट्स दे सके और वो बड़े, और ये आपकी अपनी एनवायरनमेंट की तरफ कंट्रीब्यूशन होगी। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु का कहना था कि फसलों की बाकियात और कूड़ा किरकिट जलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज हो चुका है। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले अनासिर को हर सूरत को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। किस तरह से हम इनसे स्मोक्स और डेंगू से अपने शहरियों को महफूज रख सकते हैं। आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने शहरियों को कि डेंगू से बचाव के लिए अपने घरों में, गमलों में, फ्रिज के ट्रे में, एयर कूलर में, किसी भी जगह पे पानी जमा नहीं होने दें। उसको साफ सुथरा माहौल रखें ताकि ये डेंगू जो मच्छर है ये इसकी परवरिश ना हो सके।
ضلع انتظامیہ کا کہنا تھا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سٹی ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران، روہی، ملتان۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے سرگرم۔ بلاول بھٹو کے ملتان آمد کے سلسلے میں پی ایل ایف جنوبی پنجاب کے عہدیداران کی پریس کانفرنس۔ صدر پی ایل ایف کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک ہفتے تک ملتان وکلاء بار سے خطاب کریں گے۔ ملتان میں صدر پی ایل ایف جنوبی پنجاب کہتے ہیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اگلے 7 روز میں ملتان آئیں گے اور ملتان بار میں وکلاء سے خطاب کریں گے۔ پی ایل ایف کے دیگر عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ غیاث الحق کا کہنا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو کی آئینی ترامیم کے ذرائع عدلیہ میں اصلاحات کی بھرپور حمایت احسن اقدام ہے۔ ان قریب ود ان دی اسپین آف 7 days انشاءاللہ تعالی وہ ملتان ہائی کورٹ میں خطاب کریں گے اور ان کے خطاب کا مقصد آئینی ترامیم ہے اور ایسی آئینی ترامیم جس میں ایک عام آدمی کا فائدہ ہے اور ان کا وزڈم یہ ہے کہ آئینی عدالتیں علیحدہ ہونی چاہیے اور دوسری عدالتیں علیحدہ ہونی چاہیے۔ صدر پیپل لائر فورم جنوبی پنجاب شیخ غیاث الحق کا کہنا تھا کہ آئینی عدالت کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو کی تجویز ہے کہ جوڈیشری کو پارلیمنٹری کمیٹی کے تحت کیا جائے۔ پارلیمنٹری کمیٹی اور جوڈیشری پارلیمان اور وکلاء شامل ہوں گے۔ اس طرح اتفاق کے رائے سے ججز کی تعیناتی کی جا سکتی ہے۔ ججز کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ اس میں امینڈمنٹ کی جائے کہ اس میں پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیٹی کو مرج کر کے اور ججز کی سلیکشن اور وہ پروسیجر وہ ایسا کیا جائے کہ جو ٹرانسپیرنٹ ہو۔ پریس کانفرنس میں ایڈوکیٹ رانا جاوید اختر، مس عائشہ، حسنین شاہ گیلانی، روبینہ رانا، ایڈوکیٹ فیاض بھٹا، شبیر کھیڑا، مظہر پہوڑ، شیخ شاہد حمید اور دیگر نے شرکت کی۔ کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ ماہر عمران، روہی، ملتان۔ مبارک پور کے کاشتکار 2 نمبر پیسٹی سائیڈ مالکان کے خلاف سراپا احتجاج۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ خراب سپرے کرنے سے کپاس کی فصل شدید متاثر ہو چکی ہے۔ مبارک پور کے کاشتکار 2 نمبر پیسٹی سائیڈ مالکان کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک طرف مہنگائی نے جینا محال کر رکھا ہے تو دوسری طرف خراب ادویات اور اسپرے کے استعمال سے کپاس کی فصل شدید متاثر ہو چکی ہے۔ کپاس کی فی ایکڑ اوسط انتہائی کم ہو گئی ہے۔ مبارک پور دوائی چاہتے تھے کپاہ کو کتے سے نہ کوئی فائدہ ملے نہ کوئی مفاد ملے۔ تھوڑے وارڈ تھوڑے سامنے ہیں۔ اساں دوائی چاہتی ہے مہنگی دیتے نہ ساکوں انہیں دے خلاف کاروائی کی وجے نہ کوئی اوسط ہے نہ کوئی سارا خرچہ پورا ہوتا ہے اساں کئی خرچہ کر سکتے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب 2 نمبر پیسٹی سائیڈ مالکان کے خلاف کارروائی کر کے کاشتکاروں کو امدادی پیکج فراہم کرے تاکہ کاشتکاروں کا خرچہ پورا ہو سکے۔ کیمرہ مین عبدالحمید کے ساتھ دلشاد جویا، روہی، مبارک پور۔ ملتان انتظامیہ کی نااہلی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ یونین کونسل 12 میں پینے کے صاف پانی کا فقدان۔ بستی بانن والا میں واٹر فلٹریشن پلانٹ 4 سال سے غیر فعال ہے۔ ملتان میں یونین کونسلر 12 کے عوام پینے کے صاف پانی کو ترسنے لگے۔ پوری یونین کونسلر میں صرف ایک ہی واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب کیا گیا تھا، وہ بھی 4 سال سے غیر فعال ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ واسا دفتر کے چکر لگا لگا تھک گئے ہیں، مگر انتظامیہ واٹر فلٹریشن پلانٹ فعال کرنے میں ناکام ہے۔ فلٹریشن پلانٹ تقریباً 4-5 مہینے سے بند پڑا ہوا ہے اور ہمیں پانی بھی دور سے لے کے آنا پڑتا ہے۔ جن بیچاروں کے پاس بائک نہیں ہے وہ تو بیچارے یہی پانی پی رہے ہیں، پیلا پانی پی رہے ہیں، خراب پانی پی رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں علاقے میں زیر زمین پانی زہریلا ہے۔ فلٹریشن پلانٹ بند ہونے کے باعث آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ مکی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہم یہ انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں ہمارا فلٹریشن پلانٹ اور سیوریج کا نظام بالکل ہی ہمارا کلیئر چاہیے۔ جو فنڈ لے کے یہ کھا رہے ہیں ہمارے ساتھ آتے ہیں جی یہیں کر دیں گے۔ مہربانی خدارہ آپ سے ہاتھ بار ریکویسٹ ہے کہ ہمارا فلٹر پلانٹ اور ہمارے سیوریج کا نظام سیٹ کرو۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کو جلد فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین محمد آصف کے ساتھ اون عباس، روہی، ملتان۔ دوسری جانب ڈیرہ غازی خان میں میپکو انتظامیہ کے مبینہ نااہلی عوام کے لیے درد سر ہے۔ میپکو حکام نے رانی بازار میں بجلی کی ننگی تاریں چھوڑ دیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش کے دنوں میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے کسی بھی قسم کا جانی و مالی نقصان ہو سکتا ہے۔
डेरा गाजी खान में मैपको हुकाम की मुबैना नाअहली शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। रानी बाजार में हर तरफ बेहंगम तारों के अंबार लगे हुए हैं। दुकान, घर, दीवार और खंभों पर बिजली की नंगी तारें लटक रही हैं। शहरियों का कहना था कि बारिश के दिनों में शॉर्ट सर्किट की वजह से जानी और माली नुकसान का खदशा लगा रहता है। यहाँ के इदारे जो है नाकाम हो चुके हैं, यहाँ कोई काम नहीं करते। हमने 100 बार वापडा में कंप्लेन की है, अपने रानी बाजार के सदर साहब के जरिए, अपने जरिए, मगर कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ कोई हमें पूछने वाला। TMA वाले भी आए थे, उनको भी हमने बात की थी, दिखाया था, मगर कोई आता नहीं है इसको बनाने के लिए और जोड़ने के लिए। शहरी कहते हैं मैपको इंतजामिया को कई बार दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैपको से भी की है, वो कहते हैं कि हम भेज रहे हैं, बंदे भेज रहे हैं, मगर कोई नहीं आता। ये आज की बात नहीं है, 2-4 साल उससे जो है ना हम कंप्लेन लिखवा रहे हैं, उनको दे रहे हैं वापडा मैपको को। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर तारों के मसला को हल करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही डीजी खान। जतोई शहर के वार्ड 1 का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम। स्कूल की इमारत इंतहाई खस्ता हाली का शिकार। पीने के साफ पानी का भी इंतजाम नहीं। मासूम बच्चे पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। जतोई के सरकारी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाला वार्ड नंबर 1 का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बीट सुलेमान एक तरफ बुनियादी सहूलियात से महरूम तो दूसरी जानब इमारत भी इंतहाई खस्ता हाल है, जो किसी भी वक्त बड़े साने का सबब बन सकती है। एजुकेशन अफसरान की कार्रवाइयाँ फोटो सेशन तक महदूद हैं। स्कूल में बच्चों के लिए पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं, ना ही वॉशरूम की सहूलत है। अहले इलाका का शदीद एहतजाज करते हुए कहना है कि वजीर आला हमारे इलाके के स्कूल पर भी तवज्जो दें। हमारे बच्चों को स्कूल में साफ पानी तो दूर, नलके का सादा पानी तक मुयस्सर नहीं। सरकारी थी वने वजीर आला पंजाब खुद गिने जो सारे मेहरबानी करे, सारे तरस करे, एहसास करे सारा तम म्यूनसिपल दा मौजा है बेट सुलेमान म्यूनसिपल चे वार्ड नंबर 1 के ही दे वजी पढ़ाई दा ए फुकदान है। तब असा किवें मुतमईन थे पढ़ाई के नो। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, कमिश्नर डीजी खान और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर स्कूल में कम से कम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरा टीम के साथ वजीर मलक, रोही न्यूज, जतोई। कोट मिठन मसाइल का गढ़ बन गया। शहर का इकलौता ख्वाजा फरीद पार्क इंतजामी की अदम दिलचस्पी और गफलत के बायस वीराने में तब्दील हो गया। पार्क में नस्ब झूले भी टूट फूट का शिकार। शहरियों ने पार्क की हालत देखकर यहां आना ही छोड़ दिया है। कोट मिठन इंतजामिया की गफलत या मुबैना ना अहली। शहर का इकलौता ख्वाजा फरीद पार्क वीराने का मंजर पेश करने लगा। पार्क में बच्चों के लिए नसब झूले टूट फूट का शिकार। पार्क में सफाई की हालत इंतहाई खराब। जगह जगह गंदगी के अंबार हैं। पार्क में घास की जगह खारदार झाड़ियां उग आईं। पार्क में नसब फुवारा भी अपनी बदकिस्मती की दास्तान बयान करता दिखाई देता है। शहरियों का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये पार्क कभी इंतहाई खूबसूरत और अपनी मिसाल आप होता था। पार्क की हालत देखकर अब आने को दिल नहीं करता। आला हुकाम फौरी नोटिस लेकर पार्क की हालत को बेहतर करें। यहाँ पर सफाई के इंतहाई नाकस इंतजामात हैं। बच्चों के लिए बनाए गए झूले हैं वो टूट चुके हैं। यहाँ पर अब बच्चों का भी रश कम हो गया है, अब आने को दिल नहीं करता। पार्क जगह जगह पर गंदगी के ढेर हैं, बच्चों को खेलने वाले झूले टूट फूट का शिकार है। उसके अलावा यहाँ पर तमाम तरह की सहूलियात हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। शहरी यहाँ पर आके मायूस होते हैं, हालत गुजार को देखकर इंतहाई अफसरदा होकर यहाँ से चले जाते हैं। शहर के ऐन वस्त में 7 एकड़ अराजी पर बनाया गया ख्वाजा फरीद पार्क इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। शायद कोई सियासी नुमाइंदा या हुकूमती ओहदेदार आए और पार्क की रौनकों को फिर से बहाल करे। कैमरामैन रियाज मस्तोई के साथ अफजल फरीदी, रोही, कोट मिठन। आपको बताइए टोल टैक्स में इजाफा नामंजूर। मुल्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत टोल टैक्स में इजाफा करके ट्रांसपोर्टर्स का माशी कत्ल कर रही है। पे जुल्म नहीं करेगा, ड्राइवरों पे जुल्म बंद करो, टोल टैक्स में इजाफा बंद करो। मुल्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स टोल टैक्स में इजाफा के खिलाफ सरापा एहतजाज। सदर जनूबी पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन साजिद अवान का कहना था कि ट्रांसपोर्ट मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मगर हुकूमत टोल टैक्स में 30% इजाफा करके ट्रांसपोर्टर्स का मुआशी कत्ल कर रही है। जो मामलात हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट को खसूसन ना कोई तहफ़्फ़ुज़ है, बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ड्राइवर्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और अब जो जुल्म किया है इन्होंने टोल प्लाजे बढ़ा के, और इसका असरअंदाज बहुत ज़्यादा हम पे हो रहा है, नुकसान हो रहा है हमारा। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि नेशनल हाईवे पर कार का टोल टैक्स 40 से बढ़ाकर 50, वैगन का 90 और बस का 170 रुपए कर दिया गया है। नेशनल हाईवे 2 और 3 पर एक्सल ट्रक का टोल टैक्स 210 और आर्टिकुलेटेड ट्रक का टोल टैक्स 460 रुपए मुकर्रर कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर
पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की कलीदी हैसियत रखती है। ये ट्रांसपोर्टर को दीवार में लगाने की कोशिश कर रही है ये गवर्नमेंट। मेरी आला अफसरान से, आला बाला काम से गुजारिश है कि खुदारा ये टूल प्लाजे जो इन्होंने बढ़ाए हैं इनको वापस लिया जाए, और जो मोटरवे चलानों की मद में मोटरवे पे जुल्म है ये बंद किया जाए, और जो पेट्रोलिंग पुलिस ने जो जुल्म शुरू किया है ये भी बंद किया जाए, वरना हम इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत बड़े एहतजाज का और बहुत बड़ी हड़ताल का ऐलान करने जा रहे हैं। 20 रुपए थे कार के, वो 50 कर दिए, ऐसे 20% सबके बढ़ाए हैं। तो ये जुल्म ज्यादती है। वहाँ सिंध से जो बलूचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से जो गाड़ियाँ चलती हैं वो पंजाब तक आते होता है, तकरीबन उनका इतना किराया नहीं होता जितना उनका खर्चा हो जाता है। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत टूल टैक्स में इजाफे को फौरी वापस ले, वरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। कैमरामैन शहाब के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। मुल्तान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। क्लर्क्स ने लीव इंकैशमेंट और ग्रेजुएटी के मसाइल पर एहतजाज किया। मुल्तान में महंगाई से परेशान क्लर्क हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी के मसाइल पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि तमाम क्लर्क अहम आवाज होकर अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। लीव एनकैशमेंट जो 12 माह पर मुश्तमिल होता था, गवर्नमेंट देती थी, उन पर कट लगा दी गई है, अब वो ना होने के बराबर है। तो मरियम नवाज साहबा ने हमसे वादा किया था अक्टूबर में जो लाहौर में धरना दिया था, अभी तक वो लेटर वापस नहीं हुआ, उसके खिलाफ हमारा एहतजाज है। दूसरा 17A में और कोई भर्ती नहीं हो रही, सिर्फ 17A में जो मुलाजम फौत हो जाता था उनके बच्चों को मुलाजमत दी जाती थी, उनको ख़त्म कर दिया गया। उनके खिलाफ है कि वो लेटर विदड्रा किया जाए। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हुकूमत महंगाई के इस दौर में लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी के मसाइल पैदा करके क्लर्क्स के साथ बुरा सलूक कर रही है। एहतजाज में क्लर्क्स यूनियन समेत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने कसीर तादाद में शिरकत की। क्या करेंगे, आपको हड़ताल पे नहीं जाना पड़ेगा और 17A की बहाली भी आपको इंशाल्लाह दी जाएगी, आपको एहतजाज नहीं करना पड़ेगा। इंतहाई अफसोस के साथ कहते हैं कि मरियम नवाज साहबा ने, हम उसको कहते हैं कि अपने प्रोग्राम तो वो चला रही हैं, कभी 30 दिन का, कभी 90 दिन का, कभी 100 दिन का। हमने बारहा कहा था कि हमारे इस प्रोग्राम को, जो कि मुलाजमीन का प्रोग्राम है, आईन पाकिस्तान के तहत चल रहा है कि मुआशरे के शहरियों को हकूक मिलने चाहिए, इनको पूरा कर दीजिए ताकि ये लोग आपके लिए भी दमादम मस्त कलंदर करें और इजहार मुसरत करें। मुजाहिरीन ने हुकूमत से दर्जा चहारुम के मुलाजमीन के मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में बर्ड्स यूनियन महकमा वाइल्ड लाइफ के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना है कि महकमा वाइल्ड लाइफ हमारा कारोबार तबाह कर रहा है। 10 साल से परिंदों का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ हमें लाइसेंस फराहम नहीं कर रहा। रहीम यार खान में परिंदों का कारोबार करने वाले दुकानदार महकमा वाइल्ड लाइफ के खिलाफ सड़कों पर आ गए। बर्ड्स यूनियन ने प्रेस क्लब के बाहर महकमा वाइल्ड लाइफ के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो 10 साल से परिंदों का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ हमें परेशान करता है। हुकूमत को टैक्स अदा करते हैं, लेकिन हमें लाइसेंस नहीं दिए जाते। हम गवर्नमेंट को टैक्स अदा करना चाहते हैं, लाइसेंस बनवा रहे हैं, 10, 12, 15 सालों से लाइसेंस बनवा रहे हैं, हमारे पास लाइसेंस पुराने मौजूद हैं, लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ तावन नहीं कर रहा। हमारा माल उठाया जाता है, लाइसेंस नहीं उसको मुकम्मल किया जाता, पैसे ले लिए जाते हैं, पैसे लेने के बाद लाइसेंस की कॉपी नहीं मिलती। मुजाहिरीन का कहना था कि हर साल महकमा वाइल्ड लाइफ लाइसेंस के पैसे लेकर खा जाता है, सालाना चालान की फीस भी अदा करते। लाइसेंस के बगैर हमें कारोबार नहीं करने दिया जाता। हमारे परिंदे देखें, अब 100 रुपए का एक तोता है, दाना जो है वो 300 रुपए किलो है। उसके हिसाब से हम अपना पेट पालें या क्या नाम है तोते बेचें। इन्होंने लाइसेंस 36,000 रुपए का रखा हुआ है। उसके अलावा हमने मैं सबसे पुराना दुकानदार हूँ, जो मैं कितने सालों से पैसे भर रहा हूँ, लेकिन लाइसेंस नहीं मिल रहा। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबात हल करवाने का मुतालबा कर दिया ताकि परिंदों के ताजिरों का मयार बुलंद हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना।